Hello student, good morning to all of you. What are you doing on? Study हो रही है? Okay, let's start today the new topic. We are studying the chapters accounting for partnership for fundamentals. And today we are going to discuss about the formats of the profit and loss appropriation accounts. What is the formats that is prepared for the distribution of the profit that will be distributed among the partners. So as per the Partnership Act 1932, the format is given here as per your screen. Your screen. So let's conclude it. So first of all, we will write the So first of all, we can see here that there are some balances are given. If there is a credit balance in the profit and loss account, you can see here in the credit side. If there is a credit balance in the profit and loss accounts, we will transfer from the profit and loss account net profit. We will transfer here in the in the credit side of the PL appropriation account. And if there is a loss in the PL appropriation account, we will transfer here in the debit side of the profit and loss account. Okay, student. And then after we start the distribution. सपोज करो कि आपने प्रॉफिट अर्न किया है 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में जो भी पार्टनरशिप में डीड में उनके द्वारा मेंशन आपने किया है पार्टनरशिप डीड में चाहे इंटरेस्ट हो चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो वट एवर यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इन द प्रीवियसली इन योर पार्टनरशिप डीड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट. But condition is that the profit should be the sufficient for the distribution of the whatever the demand of the partners. So if there is a sufficient profit, we will distribute the interest on capital. Interest on capital. We will here distribute the interest on capital. If there is a two partners A and B, we will interest given here in the debit side. Okay, whatever the rate may be the 5%, 10% on their capital, we will write on the debit side of the profit and loss appropriation account. So then if there is any salary given to the partner, सपोज करो कि पार्टनर ए या बी को किसी को सैलरी प्रोवाइड की जाती है तो उसकी सैलरी को भी यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हम लोग डेबिट साइड में राइट डाउन करेंगे. इसी तरीके सेम वे इफ देयर इज ए commission given to any partners we will provide the here in the debit side on the debit side. Rule is same as you have learned in the class 11th. Debit all the expenses and losses, credit all the income and profit. So for the firm in the profit and loss appropriation account it is same prepare as the PL account. We have already studied the debit. In the debit side we write the salary, commission and whatever the expenses. So इस यहाँ पे ये जो आपके PL appropriation account जो है इस अकाउंट में सिर्फ वही लोग शामिल होंगे जो कि पार्टनर है. ये ओनर्स को प्रोवाइड करने के ओनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये अकाउंट प्रिपेयर किया था. इसमें आउटसाइडर को कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं होगा. इसमें पार्टनर को ही सैलरी देना है, पार्टनर को ही कमीशन देना है, पार्टनर्स को ही जो भी हम पेमेंट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं. ठीक, सपोज करो कि द फर्म हैज़ in the partnership deed there is a given that if there is a sufficient profit we will make the provision for the reserve. So we will provide the reserve here also, maybe the 5% or 10% of the 10% of the profit. So after that we can see here that the in the credit side we will write the drawing. If their partnership did allow that
if any partner withdrawal from their own capital for the own purpose or for the personal purpose, interest will be charged. We will charge here the interest and we will put here in the credit side of the PL appropriation account. अब सपोज करते हैं कि अब सभी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमारे जो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो बिगर है डेबिट साइड के। डेबिट साइड के बैलेंसेस से अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट का बैलेंस दिखाई देगा। इस प्रॉफिट के बैलेंस को हम लोग पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। प्रॉफिट को यहाँ पे सभी क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद अगर डेबिट साइड के टोटल से ये क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा तो यहाँ पे प्रॉफिट बचेगा। बच्चों इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और उनको डिस्ट्रीब्यूशन करके जो भी उनका एग्रीड रेशियो होगा, चाहे इक्वल रेशियो है, चाहे उनके द्वारा जो भी 3:1 2:1 जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट बैलेंस क्या हो जाए, इनसफिशिएंट हो जाए। इनसफिशिएंट के केस में क्या होगा, सपोज करो कि अगर प्रॉफिट क्या हो कि इनसफिशिएंट हो जाए तो इस कंडीशन में डेबिट साइड का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम होगा। तो यहाँ पे हमको लॉस मिलेगा। तो इस लॉस को क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस। इस लॉस को क्या करेंगे, ये भी पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में इक्वली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, इस क्रेडिट साइड में जो भी प्रॉफिट गिवन होगा हमको ट्रांसफ़र कर देना है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के बाद उन पे जो इंटरेस्ट प्रॉफिट करने के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे, सैलरी प्रोवाइड कर देंगे, कमीशन प्रोवाइड कर देंगे, रिजर्व ट्रांसफ़र कर देंगे अगर गिवन है। और क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा तो डेबिट साइड में उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे हमारा डेबिट साइड का बैलेंस क्या हो, ज़्यादा हो तो क्रेडिट साइड का बैलेंस कम होगा तो यहाँ पे हमें लॉस होगा। डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होने पर यहाँ पे लॉस होगा तो इस लॉस को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक्सप्लेनेशन को आपने समझा होगा। और अगर आपको कोई किसी पॉइंट पे या फिर किसी हेड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे डिस्कस करिएगा आपके जो भी गिवन ग्रुप है। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग टॉपिक कवर करते हैं इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री के बारे में। ओके।